Hello everyone, welcome back. This is question number 4 of your exercise, that is 13.2 symmetry chapter से है ये question number 4. So question number 4 what says, can you draw a triangle which has, क्या आप एक ट्राइंगल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं. अब इसमें कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं जो कि ट्राइंगल्स उसने ड्रॉ करने के लिए बोला है. ओके, सो फर्स्ट है कि एग्जैक्टली वन लाइन ऑफ सिमिट्री. क्या कोई एक ऐसा ट्राइंगल है जिसकी लाइन ऑफ सिमिट्री जो है वो 1 है, 1 होती हो, जिसमें हम एक ही लाइन ऑफ सिमिट्री बना सकते हैं. तो वी नो टाइप्स ऑफ ट्राइंगल. तो ट्राइंगल के कितने टाइप्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइड्स? 3 टाइप्स होते हैं, दैट इज आइसोसेलेस, इक्विलेटरल एंड स्केलिन ट्राइंगल. ओके, सो अब एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री कौन से वाले ट्राइंगल में ड्रॉ होती है? एग्जैक्टली 1 लाइन ऑफ सिमिट्री, यस, दैट इज वी कैन ड्रॉ इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. तो इसका आंसर हो गया यस. और कौन से ट्राइंगल में नेम ऑफ द ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस ट्राइंगल. ओके, आइसोसेलेस ट्राइंगल की में हम 1 लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ कर सकते हैं. सो बिकॉज आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज 1 लाइन ऑफ सिमिट्री, so let's draw it. But if we want an accurate triangle, then we will construct it by a compass. Okay, so I will take a baseline of any measurement. किसी भी मेजरमेंट की मैं बेस लाइन जो है वो ड्रॉ कर लूंगी. सो इफ आई विल टेक अ बेस लाइन that is 6 centimeters. Okay, so now we will construct the sides so that we should get the equal measurement of both the sides. And if I take both the sides, ठीक है, the same measurement, then let's suppose कि we will measure a compass 4 centimeter. Okay, now I will draw an arc from this point and another arc from this point which intersect the first arc at this point, and this point is called the intersecting point. Okay, now we will join this point from both the points of the baseline. So we can find that here is an isosceles triangle with equal measurements. Okay, because of now extended arcs we can rub it. Now this one side and this one side, both sides are equal because both are in measurement 4 centimeters. Okay, now we will construct the symmetrical line. अब symmetrical line construct करने के लिए हमें इसकी बेस लाइन हमने कितनी ली थी? 6 ली थी. तो that means हमारा मिड पॉइंट कौन सा हो गया? 3. Now we will draw a symmetry line which pass from the intersecting point and the midpoint of the baseline. Okay, so this one is your line of symmetry, that is 1. So 1 line of symmetry. So exactly 1 line of symmetry कौन से triangle में होती है?
Yes, here is an isosceles triangle which has one line of symmetry only. अब line of symmetry means कि अगर हम इसे fold करें, ओवरलैप करें एक दूसरे पर, तो ये वाला जो पार्ट है ये इसको ओवरलैप कर लेगा. ओके, so this one is the part A. Now come to the part B. अब this one is your part B of this question, and part B says that exactly two lines of symmetry. अब क्या कोई एक ऐसा ट्राइंगल होता है कि जिसमें टू लाइन्स ऑफ सिमिट्री हो? तो इसका आंसर होगा नो. कोई भी ट्राइंगल ऐसा नहीं होता जिसमें कि टू लाइन्स ऑफ सिमिट्री होती है. हमने पढ़ा कि 3 टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स होते हैं, इक्विलेटरल, स्केलिन, आइसोसेलेस. आइसोसेलेस में 1 लाइन ऑफ सिमिट्री होती है, ठीक है, और इक्विलेटरल में 3 होती हैं, और स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी नहीं होती. ओके, सो 2 लाइन्स का तो कोई ऐसा ट्राइंगल ही नहीं है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री ड्रॉ हो सकती है. तो इसका आंसर है नो. ओके, now come to the C part of this question. Exactly 3 lines of symmetry. अब as we know, 3 lines of symmetry in a triangle has, yes, that is equilateral triangle. Equilateral triangle में किस तीनों sides equal होती हैं? अगर if there are 3 sides equal, then there are 3 lines of symmetry. Okay, so we will draw first of all an equilateral triangle, or for equilateral triangle we will take 3 of these sides equal. So if I will take the baseline 4 सेंटीमीटर, ओके, अब अगर मैंने ये 4 सेंटीमीटर लिए हैं तो हमें जो साइड्स की जो लाइन या मेजरमेंट्स होंगी वो भी हमें 4 सेंटीमीटर ही रखनी होगी. ओके, तो I will measure my compass 4 सेंटीमीटर. ओके, 4 सेंटीमीटर मेजर करी हमने. Now I will draw an arc from this point. Again I will draw an arc from this point which will intersect previous arc at this point. Okay. Now this one is your intersecting point where 2 arcs meet. That was the intersecting point. Okay, now we will join the baseline with intersecting point of the arcs. So here we will join it. Now again from this point I will join this intersecting point. Now this is our equilateral triangle. Extended arcs जो है उसको मैं रिमूव कर दूंगी. Okay, now this one is your equilateral triangle. If we will measure it, then this is 4 centimeter, this is also 4 centimeter, and this one is also 4 centimeter. Okay, now we will draw the symmetry line. अब symmetry line के लिए जहां इस वर्टेक्स से अगर हम लेंगे तो हमें यहां से पास करनी होगी symmetry line. So we will find the mid of this line, that is 2. Now I will draw a symmetry line from this midpoint. Okay, so this one is your line 1. Again I will take this vertex. If I take this vertex, then I will take the side of the opposite of this vertex. So here it is also 2 centimeter for the 4 centimeter. The midpoint is 2 centimeters. Now I will join these 2 points for a symmetry line, right? That is line 2.
again I will take this corner and the front side of this vertex. Now I will take the midpoint of this line, that is 2. I will join symmetry line with this point. So this one is your line 3. Okay, so this one is your equilateral triangle which has 3 lines of symmetry. So exactly 3 lines of symmetry, that is an equilateral triangle. Okay, now fourth part says that no line of symmetry. अब कौन सा ट्राइंगल ऐसा है जिसकी नो लाइन ऑफ सिमिट्री है, यानी उस ट्राइंगल में सिमिट्री लाइन है ही नहीं, होती ही नहीं. तो कौन सा ट्राइंगल होगा जिसमें लाइन ऑफ सिमिट्री नहीं होती? वो होता है, ऐसा ट्राइंगल होता है. यस, नाम बताएंगे उसका, दैट इज स्केलिन. अभी बताया था मैंने कि स्केलिन ट्राइंगल की 0 लाइन ऑफ सिमिट्री होती है या नो लाइन ऑफ सिमिट्री होती है. अब स्केलिन ट्राइंगल होता कौन सा है? जिसकी ऑल साइड्स डिफरेंट होती हैं, डिफरेंट शेप्स की होती हैं, डिफरेंट मेजरमेंट्स की होती हैं. ओके, सो नाउ वी विल कंस्ट्रक्ट एन स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल. सो स्केलिन ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए I will take the baseline 6 सेंटीमीटर. अब मुझे तीनों ही साइड्स जो है वो डिफरेंट लेनी है. ओके, तो ये मैंने 6 लेनी. अब मैं दूसरी साइड जो है वो 4 ले लेते हैं हम. बस हमें डिफरेंट लेनी है, अलग अलग लेनी है. ये अगर मैंने 6 ली तो यहां से मैंने एक 4 पे आर्क लगा दी, 4 सेंटीमीटर मेजरमेंट की लेकर आर्क लगा दी. अब जो ये वाली लेनी है ये मैं थोड़ी और बड़ी ले लेती हूं, 7 सेंटीमीटर की ले लेती हूं. ठीक है. अब ये जहां भी 2 आर्क्स आपस में मिली वहां पर एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो बन जाएगा. अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन गया. अब इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट से वी विल जॉइन द बेस लाइन, this one, and ठीक है. अब ये हमारे पास है एक स्केलिन ट्राइंगल. स्केलिन ट्राइंगल में की जो तीनों साइड्स हैं वो डिफरेंट हैं. बेस लाइन हमारी 6 थी, ये हमने 4 ले ली और ये हमने 7 सेंटीमीटर ले ली. कुछ भी ले सकते हो लेकिन आपने तीनों डिफरेंट लेनी है. अब अगर हम इसमें से सिमिट्री लाइन ड्रॉ करें तो इसकी सिमिट्री लाइन होती ही नहीं, नो लाइन ऑफ सिमिट्री. स्केलिन ट्राइंगल में हाउ मेनी लाइंस ऑफ सिमिट्री? स्केलिन ट्राइंगल हैज 0 लाइन ऑफ सिमिट्री. ओके, सो अगर हम लेट्स सपोज कि अगर हम इसे ज्वाइन करें यहां से, इसका मिड पॉइंट लेके, तो ये पॉइंट हमारा यहां पे आ गया. ओके, सो वी विल चेक. अब ये देखो, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल तो नहीं है. अगर हम इसे यहां से फोल्ड करें तो क्या ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉइंट तो यहां पे आ जाएगा, तो ये ओवरलैप नहीं करेंगे. इसका मतलब है कि स्केलिन ट्राइंगल की कोई भी लाइन ऑफ सिमिट्री जो है वो नहीं होती. सो दिस वन इज योर क्वेश्चन नंबर 4. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.